हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 18 ट्रेन ऑफ द फ्यूचर की ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेसन पूरा हम रीड करेंगे और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं अंडरलाइन करके दूंगी आपको। तो ट्रेन ऑफ द फ्यूचर, लेसन नंबर 18। अबाउट द लेसन। In this lesson, we will come to know about the use of the principle of magnetism to give the speed to transportation from one place to another. क्या मतलब हुआ कि इस लेसन में हम प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कहाँ से आया है? मैग्नेट से। तो उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन में वो कैसे यूज होता है, स्पीड देने के लिए ट्रांसपोर्ट का, कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही कम टाइम लगे। While going through the lesson, you will come to know about the principle of magnetism and its practical use in our day-to-day life in very simple way. और मैग्नेटिज्म का कैसे हमारी लाइफ में भी डे टू डे लाइफ में यूज होता है। तो हम पढ़ेंगे, फ्लाइंग इन एयर विदाउट विंग्स, डजंट इट सीम टू बी फैंटेसी? एयर में फ्लाई करना विंग्स के बिना, ये एक फैंटेसी जैसा है। जूमिंग थ्रू द एयर एट अ स्पीड ऑफ 561 किलोमीटर्स पर आवर इज नॉट अ पैसेंजर जेट और एन एयरफोर्स रॉकेट बट अ ट्रेन। क्या लिखा है इसमें? जूमिंग थ्रू द एयर एट अ स्पीड ऑफ 561 किलोमीटर पर आवर। वो ना कोई एयरफोर्स है ना कोई जेट प्लेन है, इट्स अ ट्रेन। हम ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दैट टू विदाउट विंग्स, वो भी बिना विंग्स के। अमेजिंग एज इट साउंड्स, अमेजिंग साउंड करता है ये चीज। बट इट इज ट्रू दैट maglev एक्सप्रेस, a Japanese train, is not only the world's fastest train but also a flying train. maglev एक्सप्रेस एक जापानीज ट्रेन है जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन तो है ही है, बट उसके साथ एक फ्लाइंग ट्रेन भी है। ट्रेन विदाउट विंग्स। A surprising aspect associated with maglev express is that it does need a rail track to run on. Its peculiar track has a special name, guideway. उसका ट्रैक का क्या नाम है? guideway. Unlike other trains which have wheels rolling on steel tracks, maglev express actually runs through the air above the guideway. Levitates means floating in the air. Levitates का मतलब क्या होता है? Floating in the air. The train flies in the air about 4 or 5 inches above its track. ये जो ट्रेन है ये एयर में फ्लाई करती है 4-5 इंचेस अबव द ट्रैक। 4-5 इंचेस अपना जो ट्रैक है उसका, उससे 4-5 इंचेस ऊपर। Is that possible? क्या ये possible है? This fact is not only strange but also unbelievable. ये बहुत ही अनोखा फैक्ट तो है ही, बट अनबिलीवेबल है, इसको हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। There is ordinary science and extremely interesting technology that makes it possible. Maglev, having 3 cars using the principle of magnetism to fly in the air. Here is how it works. अब हम पढ़ेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि ट्रेन एयर में फ्लाई हो रही है और प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म कैसे इसको हेल्प कर रहा है। The bottom of the train has magnets. जो नीचे का पार्ट है ट्रेन का उसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं। Similarly, there are magnets all among the guideway. गाइडवे क्या था? ट्रैक का नाम था। तो मैग्नेट्स कहाँ लगे हुए हैं? ट्रैक पे भी लगे हुए हैं। These are no ordinary magnets. ये कोई ऑर्डिनरी मैग्नेट्स नहीं है। These are high power electromagnets. ये हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ये सिंपल ऑर्डिनरी मैग्नेट्स नहीं है। In simple words,
Electromagnets are pieces of wires of iron which starts behaving as magnets. Electromagnets क्या होते हैं? Pieces और wire of iron होती है, iron की wires जो magnets की तरह काम करती हैं. When the current is passed in them through wires, these magnets can push or pull objects in circular area around them. This area is known as their magnetic field. इस एरिया को क्या बोला जाता है? Magnetic field. As it is well known in magnets, like poles repel or push each other, and unlike poles attract or pull each other. That is, north pole of one magnet will push away the north pole of another magnet. In case of maglev, the magnets are at the bottom of the train and beneath them in the guideway have similar polarity. That is, north-north or south-south, and therefore they push away each other. Since the guideway is fixed to the ground, it is the train that is paused in the air by the repulsive force of the magnets. ये सारा इसमें जो रोल है वो किसका है? Magnets का. So strong is the pushing force of the magnets that the train remains suspended in the air always. Now one might think, what makes maglev move forward? अब सब ये सोच रहे होंगे कि आगे कैसे बढ़ती है वो ट्रेन. The answer is again based on principles of magnetism. तो इसका आंसर क्या है कि वही प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म पे सारा रोल है मैग्नेटिज्म का. द फ्रंट पार्ट इंजन एंड द बैक पार्ट बोगे ईच हैज अ मैग्नेट. Similarly, the guideway has coils, spring-like wires, fixed within its wall right through its length. When current passes through these coils, they become magnets. The flow of the current through them is so adjusted that coils a little head of the front of the train develop a polarity which is opposite to that of the magnet in front of the train. Thus, it attracts the front of the train and hence pull it forward. Similarly, the coils in guideway little behind the train develop a polarity similar to that of the magnet attached to the back of the train. Thus, they repel each other. Since the coils are fixed and cannot move, so the only possibility is that the train is pushed forward. Therefore, pull in the front and push at the back helps the train to move forward. It is natural to wonder why maglev is the faster than an ordinary train. Its answer is similar to the question, why an aeroplane is faster than the train. In an ordinary train, wheels run on a steel track. There is a force of friction between the wheels and the track, hindering the forward movement to the train to some extent. Since maglev does not use wheels, there is no contact with the guideway and thus no resistance to its moving forward. Hence, its speed is faster. अब वो ट्रैक पे चलता ही नहीं, गाइडवे पे चलता ही नहीं और अबव द गाइडवे चलता है, बेसिकली एयर में. सो ऑटोमेटिकली मैगलेव जो ट्रेन है उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट होगी दूसरी ट्रेन से, जो दूसरी ट्रेन कहाँ चलती है? स्टील ट्रैक पे. तो उनके मूवमेंट और मैगलेव ट्रेन के मूवमेंट में बहुत फर्क है, स्पीड में बहुत फर्क है. द स्पीड ऑफ मैगलेव इज एज गुड एज दैट ऑफ एन एरोप्लेन. अब एरोप्लेन में भी आप जैसे एरोप्लेन में हम जाएं और ट्रेन में जाएं तो बहुत फर्क है ना. एरोप्लेन में तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे.
द स्पीड ऑफ मैगलेव इज एज गुड एज दैट ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की जो स्पीड होती है उतनी ही अच्छी है मैगलेव ट्रेन की स्पीड। इट इज वेरी कॉस्टली टू डेवलप द गाइडवे फॉर द ट्रेन एंड मेंटेन दैम। दिस इज द रीजन व्हाई maglev is not seen in most countries, but with the development of new technology in another 2 decades, one may be traveling only in maglev trains. इसीलिए ये जो ट्रेन है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और जो गाइड वे मतलब जो ट्रैक है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यही रीज़न है कि ये बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं हैं, अभी तक डेवलप नहीं की गई हैं या इंस्टॉल नहीं की गई हैं। बट आने वाली टेक्नोलॉजी और टाइम के हिसाब से ऐसा पॉसिबल है कि हर कंट्री में हर जगह मैगलेव ट्रेन्स ही हों। ओके, सो ये हमने क्या पढ़ा? मैगलेव ट्रेन किस के बेसिस पे होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेट, तो मैग्नेट के वजह से ही ये ट्रेन जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है और सबसे टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे है, न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे, तो बहुत ही फास्ट है और एयर में मतलब क्योंकि गाइडवे से अबव है, अपने ट्रैक से अबव है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एयर में फ्लाई करती है। ओके, सो ये हमने मैगलेव ट्रेन के बारे में पढ़ा। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ तक करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इसकी जो एक्सरसाइज है, रिमेनिंग एक्सरसाइज, वो कंप्लीट करेंगे। अब ये ओरल क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। हैव यू सीन अ ट्रेन रन बाय स्टीम? डू यू हैव अ विश टू ट्रैवल इन मैगलेव ट्रेन? आपकी क्या विश है मैगलेव ट्रेन में कभी ना कभी ट्रैवल करने की? सो अब हम रिटन क्वेश्चंस करेंगे। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। मैगलेव एक्चुअली रन्स थ्रू द, एक्चुअली में मैगलेव कहाँ रन होती है? एयर में। द बॉटम ऑफ द ट्रेन हैज डैश अटैच टू इट। क्या अटैच हुआ हुआ है बॉटम ऑफ द ट्रेन में? मैग्नेट्स। These magnets can push or pull objects in a circular area around them. Thus, it attracts the front of the train. क्या अट्रैक्ट करता है? फ्रंट ऑफ द ट्रेन। हम ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो ये एक्सरसाइज आप करेंगे अपनी बुक में। नेक्स्ट टाइम हम जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे और आपने थॉरली ये चैप्टर रीड करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजीज और प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में। सो आप ये पूरा रीड करेंगे अच्छे से और जितना भी मैंने अंडरलाइन किया है वो भी आप पढ़ेंगे और स्पेलिंग्स लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।